Very good afternoon, students. Now we comes on second lecture of our unit 4th, that is the first order first degree ordinary differential equation, and we comes on the topic that is the second part, that is the homogeneous differential equation. In previous lecture we have seen a variable separable method of differential equation. Now second type is homogeneous differential equation. अब homogeneous differential equation कौन से फॉर्म में रहते हैं? So the general form is dy by dx equals to f1 of xy upon f2 of xy. If your differential equation should be in this form, dy by dx equals to f1 of xy upon f2 of xy. What about that f1 and f2? Where f1 and f2 are homogeneous functions in x and y, where f1 and f2 are homogeneous function in x and y. अब homogeneous functions कैसे रहते हैं? We have seen in a previous unit, that is a partial differentiation. हमने देखा था कि u अगर ऐसे फॉर्म में u is a function of x and y, and if you can express of degree, इसकी डिग्री है n, तो we can express that u as a x raised to n into phi of y by x, or u is equals to y raised to n into phi of x by y. अगर हम u को ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, then we say that u is a homogeneous function in x and y of degree n. तो यहाँ पे उसकी डिग्री n रहती है, यहाँ पे नॉट नेसेसरी कि उसकी डिग्री क्या पर्टिकुलर रहेंगी, वो दैट इज डिपेंड ऑन द फंक्शन. मतलब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि f1 और f2 की अगर डिग्री सेम आ रही है, दैट मीन्स दीज आर अ होमोजीनियस फंक्शन. दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए एंड दैट बोथ शुड बी इन x एंड y, वेयर f1 एंड f2 आर होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y. अगर तो एक नोट यहाँ पे ध्यान में रखना कि जब भी आप होमोजीनियस फंक्शन आइडेंटिफाई करोगे, तो इन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या रहता है? ईच टर्म इज ऑफ सेम डिग्री. व्हाट यू हैव टू रिमाइंड कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हर एक टर्म कैसी रहती? ऑफ अ सेम डिग्री. मतलब अगर फर्स्ट टर्म आपकी डिग्री 2 की रहेंगी, तो ऑब्वियसली सेकंड टर्म भी आपकी डिग्री 2 की ही रहेंगी और थर्ड टर्म भी आपकी डिग्री 2 की ही रहेगी. So you can easily identify the homogeneous differential equation. मतलब जब आपको पेपर्स में प्रॉब्लम्स आते हैं, so you first identify that differential equation is of what type? Of variable separable, of homogeneous differential equation, linear, exact or any other. So first you have to identify and then you have to solve. अब अगर ये homogeneous differential equation है, that is the general form of homogeneous differential equation, where f1 and f2 are homogeneous function in x and y. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? What we have to do? Then we have to use here substitution. What is that substitution? We have to put y equals to vx. We have to put y equals to vx. अब क्या करना है यहाँ पे? You have to differentiate with respect to x on both sides. दोनों साइड्स को हमें डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट करूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विथ रिस्पेक्ट टू x, that gives dy by dx इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा? v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो दैट इज अ dv by dx into x as it is, प्लस सेकंड टाइम v as it is डिफरेंशिएशन ऑफ x इज अ 1. तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? dy by dx is equals to v plus x into dv by dx. we get dy by dx equals to v plus x into dv by dx. ऐसे फॉर्म में हमें dy by dx की वैल्यू मिलेंगी. So finally what you have to do, that is suppose your equation number 1, you have to use this substitution y equals to vx and the value of that dy by dx equals to v plus x into dv by dx. So that is your equation number suppose 2, that is your equation number 3. So what you have to do, use equation 2 and 3. अब दोनों equations 2 and 3 you have to use in equation 1. You have to use in equation 1. तो इक्वेशन 1 में देखो क्या चेंजेस हो जाएंगे? दैट गिव्स v plus x dv by dx इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? f1 ऑफ x y की जगह
का v आ जाएगा, दैट मीन्स टोटल फंक्शन x और v के फॉर्म में, एंड f2 ऑफ x v। तो ये जो टोटल फंक्शन आ जाएगा आपका, दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ v and x, and finally what you have to do, you can separate the terms of x and v on each side and then you have to integrate on both sides। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, it comes in वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, देन इंटीग्रेट, you have to integrate on both sides, or then on integrating we get what we get a solution. On integrating we get a solution. Okay, so what we have to do here, you have to use the substitution y equals to vx when your differential equation should be a homogeneous differential equation, and the form of that homogeneous differential equation should be in this way, that is dy by dx equals to f1 of xy upon f2 of xy। f1 f2 both x और y के फंक्शंस रहते हैं, एंड देन यू हैव टू यूज द सब्स्टिट्यूशन। अगर ऐसे फॉर्म में आपका इक्वेशन है तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, y इक्वल्स टू vx। अगर y इक्वल्स टू vx लेंगे तो dy by dx की वैल्यू आपको मिलती है v plus x dv by dx। you have to both use in that equation 1, so that comes in a variable separable form, and then you have to integrate to get the solution। तो अब इस पर देखेंगे हम कुछ प्रॉब्लम्स वन बाय वन। सो नाउ वी विल सी वन बाय वन प्रॉब्लम हियर। सबसे पहले तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, दैट इज द फर्स्ट व्हाट वी हैव गिवन हियर, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, व्हाट इज दैट, दैट इज x square y dx minus of x cube plus y cube into dy equals to 0। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक टर्म की डिग्री देखो, हियर इज x square y, दैट मींस इसकी डिग्री कितनी हो गई, x square y मींस इसकी डिग्री 3 हो गई, यहाँ पे इसकी 3 है, इसकी 3 है, टोटल टर्म की डिग्री 3, मतलब हर एक की टर्म की डिग्री सेम आ रही है, सो ऑब्वियसली इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसके बाद हमें फॉर्म कौन सा लेना पड़ता है, वी हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ dy by dx is equals to f1 upon f2। ऐसे फॉर्म में अगर आप लिख सकते हैं, सो ऑब्वियसली इट इज अ होमोजेनियस। तो होमोजेनियस लाने के लिए पहले तो सबसे पहले डिग्री चेक करो, सेम आती है, देन कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्म। अब इन दिस फॉर्म यू हैव टू कन्वर्ट, यू कैन ट्रांसफर दिस टर्म टू दैट साइड, और दैट गिव्स x cube y dx equals to x cube plus y cube into dy। So that implies dy by dx, that dy by dx equals to x cube y upon x cube plus y cube। dy by dx equals to x cube upon x cube plus y cube। अब ये आ गए उस फॉर्म में f1 upon f2, we give it equation number 1। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, we put the substitution, which substitution, y equals to vx, so that implies we have to differentiate। ये आप हमेशा बात ध्यान में रखना कि y equals to vx लिखा तो डायरेक्टली यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ dy by dx, देयर इज नो एक्स्ट्रा स्टेप यू हैव टू डू, दैट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब पहला प्रॉब्लम है तो आपके मैं यहाँ पे डिटेल लिख देती हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx इक्वल्स टू यहाँ पे v का डेरिवेटिव dv by dx इंटू x एज इट इज रहेगा, प्लस सेकंड टाइम v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। सो दैट गिव्स dy by dx इक्वल्स टू, दैट गिव्स dy by dx इक्वल्स टू v प्लस x इंटू dv by dx। इट गिव्स dy by dx इक्वल्स टू v प्लस x इंटू dv by dx। तो ये हो गया आपका dy by dx की आपकी वैल्यू होगी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। वी गिव इट इक्वेशन नंबर 2, x यहाँ पे 1 है, वी गिव इट इक्वेशन नंबर 3। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, पहला इक्वेशन जो है वो 1 रहेगा आपका होमोजेनियस के फॉर्म का, जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसको 2 दे दो, और जहाँ पे dy by dx की वैल्यू है उसको 3 दे दो। अब क्या करेंगे, यूजिंग 2 and 3 in 1। देखो अब 1 में क्या क्या चेंजेस होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे
v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल्स टू एक्स क्यूब एज इट इज, y की वैल्यू क्या होगी आपकी vx हो जाएंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स क्यूब एज इट इज प्लस vx होल क्यूब, सो दैट कैन बी रिटन एज vx रेज़ टू द पावर 4 अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब प्लस v क्यूब एक्स क्यूब, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम v प्लस एक्स dv बाय dx दैट इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा v एक्स रेज़ टू द पावर 4, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन निकल जाएगा, सो वी गेट 1 प्लस v क्यूब एक्स क्यूब, यहाँ पे सिंपली एक्स रहेगा। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे वी एक्स और v की टर्म में ये, अब ये जो v है वो ट्रांसफर टू दैट साइड, इस साइड हम v को ट्रांसफर कर देंगे, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका वी एक्स अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, यहाँ पे माइनस v हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू वी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस v, यहाँ पे माइनस ऑफ v रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस v, ओके, so in this way we get that एक स्मॉल मिस्टेक यहाँ पे की गई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे मैंने एक्स क्यूब लिखा, सो दैट इज एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे भी क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई, ये तो एज इट इज है, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अब ये एक्स स्क्वायर होने की वजह से ये एक्स क्यूब, देखो क्या रहता है अगर डिग्री सेम रही तो एक बात ध्यान में रखना, जब भी आपके एक्स की और वी की टर्म आती है तो एक्स की टर्म वहां से रिमूव हो जाती है, मतलब वहां पे एक्स की टर्म रहती ही नहीं। अब ये एक्स क्यूब होने की वजह से यहाँ पे एक्स क्यूब गेट कैंसल, तो सिंपली यहाँ पे रहेंगे v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, तो आगे देखो अब क्या होने वाला है, यहाँ पे x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे v माइनस ऑफ v इंटू 1 प्लस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी क्यूब, यहाँ पे v माइनस v रेज़ टू द पावर 4 माइनस v प्लस v गेट अ कैंसल, सो x इंटू डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस v रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस v, ओके। अब क्या करेंगे, अब dv इस साइड है तो v की टर्म इधर ले लेंगे और dx को इधर ट्रांसफर कर देंगे, सो दैट कैन बी रिटन एज 1 प्लस v क्यूब अपॉन v रेज़ टू द पावर 4, ये माइनस से एज इट इज रहने देते हैं, इनटू यहाँ पे dv एज इट इज इक्वल्स टू ये माइनस एज इट इज और ax इधर माइनस 1 बाय एक्स dx, सो दैट इज अ माइनस 1 बाय एक्स dx। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सेपरेट कर देंगे टर्म, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन v रेज़ टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे 1 बाय v इंटू dv equals to minus 1 by x dx. In this way, we separate the terms 1 by 1 here. Observe it carefully. अब आगे ये टर्म यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा v रेज़ टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 बाय v इंटू डी वी इक्वल्स टू माइनस 1 बाय एक्स dx। अब इसको कर दो इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑन इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। अब v रेज़ टू माइनस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू n dx, हमें पता है इसका इंटीग्रेशन x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा v रेज़ टू माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1, अब माइनस 4 प्लस 1 दैट इज माइनस 3, तो ये हो गया v रेज़ टू माइनस 3 और डिनोमिनेटर में माइनस 3 प्लस 1 बाय v, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 बाय x, तो 1 बाय v का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v दैट इज अ log v इक्वल्स टू माइनस log ऑफ x। अब मैक्सिमम टर्म्स log के फॉर्म में ये भी है अदर देन दिस, तो इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे
c की जगह we can take it as a log c, so we can easily simplify it. We take it as a log c here. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, that is 1 upon v cube, that is minus 3 into 1 upon v cube equals to minus log x plus log of c and minus log of v. ये v log v इधर चला जाएगा, so that can be written as minus of log x plus log v प्लस लॉग सी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दैट इज माइनस 1 अपॉन 3v क्यूब. ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, दैट इज लॉग ऑफ x इंटू वी प्लस लॉग सी. तो माइनस एक्स वी, जो माइनस की टर्म है वो डिनोमिनेटर में चली जाएंगे, सो दैट कैन बी रिटन एज माइनस 1 अपॉन 3v क्यूब. यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस लॉग ऑफ x इंटू वी प्लस लॉग सी. अब प्लस लॉग सी होने की वजह से यहाँ पे इट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉग ए माइनस लॉग बी, दैट इज लॉग ऑफ ए बाय बी. तो माइनस साइन की जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, सो दैट कैन बी रिटन एज, आई विल राइट ऑन दैट साइड. सो व्हाट वी गेट हियर, वी गेट माइनस 1 अपॉन 3v क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगने की वजह से यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग ऑफ c अपॉन x इंटू. Okay, so that gives log of, or we can write c upon xv is equals to e raised to minus 1 upon 3v cube. Okay, so in this way we simplify that, or finally we can put the value of that. या फिर ये जो डिनोमिनेटर है ये है, इसको 1 अपॉन ई रेस टू 1 अपॉन 3v क्यूब लिखेंगे, तो ये टर्म इधर ले लेंगे. सो ई रेस टू 1 अपॉन 3v क्यूब इक्वल्स टू दिस टर्म ट्रांसफर टू दैट साइड, दैट इज xv बाय c. एंड फाइनली यू रिप्लेस दैट v बाय, हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, y इक्वल्स टू vx, सो दैट इंप्लाइज v इज इक्वल्स टू y बाय x. फाइनली यू हैव टू रिप्लेस दैट v बाय y by x, बिकॉज आपका ओरिजिनल जो इक्वेशन था दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ y एंड x. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3, यहाँ पे y by x क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x इंटू y by x अपॉन c. तो x x गेट कैंसल, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3y क्यूब, और ये x क्यूब न्यूमरेटर, दैट इज y by c. So in this way you get the final answer of that, or finally you can write y equals to, that c into this term e raised to x cube upon 3y. So in this way you can simplify your answer. ऐसे फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करना है, and remember that finally you have to convert your v in the form of y by x. So in this way we get the answer of that homogeneous differential equation. अब आगे की प्रॉब्लम में सेकंड प्रॉब्लम की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे dy by dx दोनों साइड है, तो हमने क्या किया, x² dy by dx की टर्म ट्रांसफर कर दी RHS को, तो dy by dx दोनों से कॉमन निकल गया, यहाँ पे x1, यहाँ पे माइनस x2. सो व्हाट वी गेट, अब हमें लिखना है इन द फॉर्म ऑफ dy by dx इक्वल्स टू f1 अपॉन f2. सबसे पहले तो डिग्री देख लेते हैं. यस, इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो इसकी, दैट मीन्स हर एक टर्म की डिग्री है, सो ऑब्वियसली इट इज अ होमोजीनियस. अब होमोजीनियस है तो हमें dy by dx के फॉर्म में लिखना है. सो dy by dx इक्वल्स टू क्या होगा, ये टर्म हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, सो दैट इज y स्क्वायर अपॉन xy माइनस x स्क्वायर आ जाएगा फिर हमारा. अब आगे आप लोगों को पता है, क्या पता है आप लोगों को, इसको नंबर देना है 1, फिर हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है, y इक्वल्स टू vx, इसको नंबर देना है 2. अब अगर ये इक्वेशन 2 हो गया तो हमें dy by dx की वैल्यू निकालनी है. dy by dx क्या रहता है हमारा, v प्लस एक्स इंटू dv by dx. वो कैसे आता है ये सभी को पता है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, यस वी यूज 2 एंड 3. कहाँ पे यूज करेंगे, इन इक्वेशन 1 में यूज करेंगे. इक्वेशन 1 में अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पे v प्लस एक्स इंटू dv by dx इक्वल्स टू y स्क्वायर, दैट इज vx अपॉन
x into vx minus x square. So finally what we get? We get v plus x into dv by dx equals to, यहाँ पे क्या जाएगा vx अपॉन, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा आपका. सो यू हैव टू टेक दैट x स्क्वायर कॉमन. अब और एक बार ध्यान से देख लो कहीं मिस्टेक्स तो नहीं हो गई है हमारी. यहाँ पे dy बाई dx, यहाँ पे y स्क्वायर है तो y की वैल्यू vx, तो इसका लेंगे हम vx का स्क्वायर एज इट इज y इज रिप्लेस बाय vx माइनस x स्क्वायर. तो अब ये है v स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर x स्क्वायर. यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से v माइनस 1 हो जाएगा. x स्क्वायर गेट कैंसिल, यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1 हो जाता है. यहाँ पे क्या होगा x इंटू dv बाई dx इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1 माइनस v. सो दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v इंटू v माइनस 1 upon v minus 1. So finally what we get? We get x into dv by dx equals to v square minus v square, minus minus become plus v upon v minus 1. Both get a cancel. That is equals to v upon v minus 1. Finally we get, अब dv इधर है तो v की टर्म हम इधर ले लेंगे. So ये टर्म when we transfer to that side, so it is v minus 1 upon v into dv equals to dx इधर चला जाएगा and that will become 1 by x dx. Okay, so यहाँ पे हो जाएगा when you separate the denominator 1 minus 1 by v into dv equals to 1 by x dx. अब करो इंटीग्रेशन. ऑन इंटीग्रेटिंग what you get on इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा आपको इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो 1 इंटू डी वी, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका डी वी माइनस 1 बाय वी इंटू डी वी इक्वल्स टू 1 बाय एक्स डी एक्स. तो हर एक टर्म को इंटीग्रेशन करो. जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन इजीली नहीं लगता पॉसिबल तो सेपरेट कर दो टर्म्स. जैसे अब हमने यहाँ पे कर दिया डी वी इंटू 1 डी वी माइनस 1 बाय वी इंटू डी वी इक्वल्स टू 1 बाय एक्स डी एक्स. अब इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी हम ले लेंगे. अब यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन v माइनस 1 बाई v का log ऑफ v इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा आपका. फाइनली दैट माइनस log v ट्रांसफर टू दैट साइड, सो v इज इक्वल्स टू log x प्लस log v प्लस c. v इज इक्वल्स टू log of a plus log b, that is log a into b plus integration constant c. So इस तरह से हमें v की वैल्यू मिलती है and now we write on that. So अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? Finally we replace that v by y by x as v y equals to vx, so that implies v is equals to y by x. So that implies y by x is equals to log of x into y by x plus c, so that get a cancel. So we get y by x is equals to log y plus c. Okay, or that y equals to, finally we can write x into in bracket. In this form we get the answer. यहाँ तक भी किया आपने, so you can get the marks. So that is all about the next problem. And now we will see one more problem on that topic. अब सबसे पहला प्रॉब्लम जो है थर्ड प्रॉब्लम, ये फोर्थ है और ये हमारा फिफ्थ है. तो थर्ड प्रॉब्लम की तरफ सबसे पहले हम ध्यान देंगे. सो वी राइट दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. व्हाट इज दैट? 1 प्लस ई रेज टू एक्स बाय वाई इंटू डी एक्स प्लस ई रेज टू एक्स बाय वाई इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0. अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हर एक टर्म में e रेज़ टू एक्स वाई है, यहाँ पे e रेज़ टू एक्स वाई और यहाँ पे x बाय वाई. मतलब हर जगह आपको x बाय वाई के फॉर्म में टर्म दिख रही है, y बाय एक्स के फॉर्म में नहीं है. दैट इज समथिंग डिफरेंट. तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, अब तक जैसे भी जितने भी हमने फॉर्म देखे थे दैट शुड बी dy बाय dx इज इक्वल्स टू f1 अपॉन f2 ऐसे थे. बट यहाँ पे हमको रिवर्स लेना है, दैट इज dx बाय dy
इक्वल्स टू F1 अपॉन F2। और सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे क्या करते थे, y इक्वल्स टू Vx, तो यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्या करनी है, x इज इक्वल्स टू Vy। यहाँ पे चेंजेस देखो क्या है, यहाँ पे dy बाय dx है, दैट मीन्स y इज डिपेंड ऑन x, और यहाँ पे dx बाय dy है, दैट मीन्स x इज डिपेंड ऑन y। तो यहाँ पे x डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन हम किसके लिए रखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू Vy लेना पड़ेगा। सो हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दैट, तो हमें dx बाय dy के फॉर्म में ये लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हर एक टर्म x बाय y के फॉर्म में है, इसलिए इट्स अ बेटर टू कन्वर्ट x बाय y इक्वल्स टू v। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस फॉर्म में लिख लेंगे dx बाय dy इक्वल्स टू। अब वो लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक वन टर्म ऑन दैट साइड, तो dx की साइड रख देते हैं हम। सो 1 प्लस e रेज़ टू x बाय y इनटू dx इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस ऑफ e रेज़ टू x बाय y इनटू 1 माइनस x बाय y इनटू d। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, dx बाय dy इक्वल्स माइनस ऑफ e रेज़ टू x बाय y। ओके, तो यहाँ पे माइनस साइन है, अब अगर ये माइनस अप्लाई कर देंगे हम अंदर, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो इसको x बाय y -1 कर देते हैं, और यहाँ पे 1 प्लस e रेज़ टू x बाय। सो एक बार अच्छे से देख लो, dx ये dy इधर आ गया, ये टर्म माइनस हमने ब्रैकेट में डाल दी, तो -1 प्लस, तो x बाय y -1, और ये टर्म ले लिया हमने डिनोमिनेटर में। अब सब्स्टिट्यूशन है हमारे लिए x इज इक्वल्स टू v1, सो दैट इंप्लाइज dx बाय dy। डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे, देखो y इक्वल्स टू vx रहता है, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या आता है आपका, v प्लस एक्स इंटू dv बाय dx बराबर। अब ऐसे अगर उस तरफ ध्यान दूंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v प्लस y इंटू dv बाय dy। देखिए तो आप करके लिखना, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट x विथ रिस्पेक्ट टू y, दैट इज dx बाय dy इक्वल्स टू v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y 1, v प्लस y एज इट इज dv बाय dy। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा आपका dx बाय dy। इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, और इसको दे दो आप 3, एंड नाउ वी कम्स ऑन दैट साइड। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 में सभी वैल्यूज पुट करेंगे। सो 1 इंप्लाइज, देखो 1 में क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे v प्लस y dv बाय dy। इतना प्रॉब्लम हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ लाइट वी कांट सी समवॉट क्लियर, बट वी कैन सी द प्रॉब्लम आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये कंटिन्यू कर देते हैं हम। इक्वेशन 1 में देखो क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e रेज़ टू x बाय y, तो x बाय y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x बाय y इज नथिंग बट v, सो वी रिप्लेस दैट गिव्स e रेज़ टू v, यहाँ पे हो जाएगा आपका v -1 अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू v। सो ऐसे फॉर्म में आ जाएगा आपका ये प्रॉब्लम। इसके बाद y इंटू dv बाय dy, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका e रेज़ टू v इंटू v माइनस e रेज़ टू v अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू v, that v transferred to that side, so it gives a minus v. So finally y into dv by dy, that is equals to e raised to v into v minus e raised to v। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप यहाँ पे लेंगे तो माइनस v and then minus of e raised to v into v, that term get a cancel here, डिनोमिनेटर में रहेगा आपका 1 प्लस e raised to v। फाइनली क्या रहेगा, y इंटू dv बाय dy, दैट इज इक्वल्स टू, माइनस साइन अगर यहाँ से ले लेंगे तो e रेज़ टू v प्लस v अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू v। अब v dv यहाँ पे है तो इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर देंगे, सो दैट 1 प्लस e रेज़ टू v अपॉन e रेज़ टू v प्लस v इंटू dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ
1/y इंटू dy, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर थोड़ा सा इस टर्म की तरफ ध्यान दोगे तो v का डेरिवेटिव 1, e रेज़ टू v का e रेज़ टू v, मतलब ये टर्म कौन से फॉर्म में है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx, सो दैट इज नथिंग बट log of f of x, दैट टर्म शुड बी इन द फॉर्म ऑफ log of f of x। तो इसको करेंगे हम इंटीग्रेशन, सो ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट यू गेट, यू कैन राइट हियर इंटीग्रेशन सिंबल और यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट कैन बी रिटन एज log ऑफ, लगे तो लिखते वक्त इसको या e रेज़ टू v प्लस v है तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज अ e रेज़ टू v प्लस 1, दैट इज e रेज़ टू v का डेरिवेटिव e रेज़ टू v और v का डेरिवेटिव 1, सो दैट गिव्स log ऑफ e रेज़ टू v प्लस v इक्वल्स टू माइनस log y प्लस, हम यहाँ पे लिमिट जो कांस्टेंट है वो भी लॉग के फॉर्म में लेंगे क्योंकि इजी जाएगा हमें यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। सो फाइनली व्हाट यू कैन गेट, यू गेट log ऑफ c बाय y और यहाँ पे log ऑफ e रेज़ टू v प्लस v, सो दोनों साइड्स के log निकल जाएंगे, e रेज़ टू v प्लस v इक्वल्स टू c बाय y, सो फाइनली वी पुट द वैल्यू ऑफ v दैट इज e रेज़ टू x बाय y प्लस x बाय y इक्वल्स टू c बाय y, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा उसका आंसर। So finally you get that y should be transferred in that side, so finally you get c is equals to this, so इस तरह से ये आ गया उसका आंसर, that is the final answer of that given differential equations। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने दिया है आप लोगों को, तो ये जो दोनों प्रॉब्लम है दैट इज फॉर योर होमवर्क, सो यू हैव टू कंप्लीट इट, ओके। आई विल प्रोवाइड द आंसर ऑफ दैट बोथ, I have provided the answer of both the differential equation for equation 4 as well as equation 5. You have to solve this and you have to get the answer in this form that I have written. और यहाँ पे अब हम कंप्लीट करते हैं हमारा लेक्चर, and that next topic of that is a reducible to homogeneous differential equation that we will see in a next lecture. So we will stop here students, thank you.